अगर आपको प्रीलिम्स से डर लगता हो और ये जानना हो कि प्रीलिम्स को अप्रोच कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू लेक्चर 8 ऑफ वाद प्रतिवाद एंड संवाद सीरीज। आई एम दीपक प्रकाश। In previous lecture, lecture 7 of Vaad Prativad and Samvad series, we discussed about right to equality. समानता के अधिकार के बारे में हम लोगों ने बात किया। उसके दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड रूल ऑफ लॉ एंड और एबी डाइसी का कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया था। सो टुडे इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फ्यू बेसिक थिंग्स अबाउट प्रीलिम्स। अभी पिछले लास्ट 30 days I have gotten more than 50 messages in which aspirants have requested कि sir now prelims are only 8 or 9 months away from today. Yesterday also I got few of the messages, so I decided let's make a video on how to approach prelims and what are the basic sources for prelims. So lecture 8 or lecture 9, दो videos we would be uploading within a matter within 2 days. Next lecture will be uploaded in next 2-3 days. There I'll be discussing about how to approach prelims. So first thing first, पिछले 3 prelims से let me tell you, I have never gotten less than 110. In fact, in my last prelims I'm even crossing 120. सो थिंग इज, प्रीलिम्स से बिल्कुल डरना नहीं है। इट इज़ एन आर्ट। प्रीलिम्स को टेक इट एज एन आर्ट एंड दैट आर्ट यू नीड टू, इफ यू रियली वांट टू एक्सेल इन प्रीलिम्स, यू नीड टू सेल थ्रू इट थ्रू यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 things. One is knowledge and the second is your efficiency. Efficiency in terms of, so you require certain traits along with knowledge. Traits और knowledge का combination चाहिए and believe me, you all are going to do master. You are all going to rock in the prelims examination. तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में we are going to focus on how to approach prelims and what are the basic sources for prelims. prelims में basic book sources क्या क्या होंगे उसके बारे में आज बात करेंगे and next video will discuss about how to approach prelims. Coming to basic book sources, अभी ध्यान ये रखना है कि basics are basics. In the very first video, this is what I told you about basics. Basics are like your foundations. एक building आप बना रहे हो, if the foundation is not strong, then believe me, that building would crumble. गिर जाएगा building. So you need to focus on fundamentals. So it will, first thing is you should memorize syllabus completely by heart. syllabus बिल्कुल आपको अच्छे से आना चाहिए. जब आपको आपका syllabus आ जाएगा, so it will help you to understand what to cover when you are going through basic textbook. basic textbook से आप जा रहे हैं, so everything under roof does not become important. Try to understand, try to memorize the question paper. अगर question paper and syllabus आपके दिमाग में है, then you know what exactly UPSC is looking for and how to sail. So जब UPSC का prelims आता है, so you will see that many questions could have been easily attempted using just the basic sources, क्योंकि basic sources are meant for that only. देन अभी क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू कवर बेसिक्स. बेसिक्स को कैसे कवर करना है. अब मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ. आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है कि बिल्कुल अलग हो एंड यू मस्ट फॉलो योर हार्ट. अपना दिमाग और हार्ट को फॉलो करना है बिकॉज अल्टीमेटली एवरी स्ट्रेटजी हैज इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेज एंड हैज इट्स ओन प्रॉस. सो दोनों चीज़ हैं, कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है. सो फॉलो योर ओन स्ट्रेटजी. लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ. सी, आई डिड माई अंडर ग्रेजुएशन इन पोलिटिकल साइंस. मैंने राजनीति शास्त्र में अंडर ग्रेजुएशन किया फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई डिड माई मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस. तो मेरा जो पेडागॉजी था वो सोशल साइंस का ही था. मैं पॉलिटिकल साइंस का कोर स्टूडेंट रहा हूँ. सो बिकॉज माई पेडागॉगी वॉज इन पॉलिटिकल साइंस, सो आई नेवर did any basics of polity.
मैंने सीधा दोनों एडवांस बुक से स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड विद बेयर एक्ट ऑफ PM बख्शी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड the Indian polity by M. Lakshmikant, and both were easily, like the language itself of Indian polity is quite lucid, one can easily understand. आराम से आप लोग सब समझ सकते हैं. So कोई भी ऐसा difficult नहीं है. अगर आपने वो आपका pedagogy, if you do not have any background in political science, कोई भी background नहीं है, so just go through class 11th and 12th political science. That's when it comes to polity, that is the crux. यही सबसे important है. इनके अलावा follow the newspaper. मैं पॉलिटी के लिए इसके अलावा कुछ नहीं किया हूँ. आई डिड ओनली 2 थिंग्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, एंड द न्यूज़पेपर. दीज आर द 3 सोर्सेज दैट वाज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी टू कवर पॉलिटी. एंड बिलीव मी कि मेरा स्ट्राइक रेट पॉलिटी में हमेशा 90% रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 90%. सो मीन्स आउट ऑफ एवरी 15 or 16 क्वेश्चन आई वॉज एबल टू सॉल्व 14 and 50 कन्वीनियंटली. कमिंग टू जोग्राफी, when when it comes to basics, मैंने ज्योग्राफी के लिए क्या क्या किया उसके बारे में बता देता हूँ. हो सकता है कि यू मे इवन स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6, यू मे स्टार्ट फ्रॉम 9th, बट वॉट आई डिड, आई फोकस्ड व्हेन इट कम्स टू NCERT ओनली ऑन क्लास 11th, क्लास 12th. दोनों क्लास 11th के दोनों बुक, फिजिकल ज्योग्राफी एंड क्लास 12th का ह्यूमन ज्योग्राफी, आई डिड इट प्रॉपरली. देन GC लियोंग का लास्ट पार्ट, I finished last part of the GC लियोंग, जिसमें उन्होंने he talked about basically different climatic region like equatorial region. उसमें उन्होंने different उसका attributes बताए हैं, feature बताए हैं. That I have done. Then mapping. When it comes to mapping, though you can follow a general trend कि सब कुछ कर लो, but again I'm telling you everything under the roof does not become important. Mapping, do using selectively, do mapping using newspaper analysis is very important. अभी Black Sea grain deal is in news, so Black Sea itself become important. Black Sea के चारों ओर जो countries हैं, important fresh water sources का जो river है जो वहाँ enter करता है, वो कौन सा river है, important ports located on Black Sea. Similarly coming to Niger, अभी Niger में crisis चल रहा है, so all the countries surrounding Niger becomes automatically important. Whether Niger equator crosses through Niger or not, what are the Saleh country, that whole region itself become important. तो उन सब को अच्छे से कर लेना है. That is about geography. Coming to environment, when it comes to environment, I focused only on 2 sources. I referred current affairs. एक तो करंट अफेयर मैंने अच्छे से किया, जो भी न्यूज़ में आ रहा था, दैट आई वाज डूइंग इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. एंड द सेकेंड थिंग, आई डिड शंकर IAS इन्वॉल्वमेंट बुक. शंकर IAS इन्वॉल्वमेंट बुक आई डिड इट कॉम्प्रिहेंसिवली, अच्छे से उसको मैंने कवर किया था. एंड आई थिंक दैट वाज मोर देन सफिशिएंट फॉर इन्वॉल्वमेंट. उसके अलावा यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग फॉर प्रीलिम्स. आई एम सेइंग प्रीलिम्स के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट. ये सब बेसिक्स बुक्स हैं. नेक्स्ट फॉर इकोनॉमी, मैंने इकोनॉमी के लिए क्या किया, डू NCERT, डू बोथ क्लास 11th and 12th, बट व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स, बिलीव मी, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11 इज गोइंग टू डू वंडर. वो जो है कॉन्सेप्चुअल बुक है, दैट वुड गिव यू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑन मल्टीपल टर्म्स. GDP क्या है, GNP क्या है, NNP क्या है, नेशनल इनकम क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, एवरीथिंग. अभी आपको याद होगा इन 2022 और 21 they asked about the concept of M3, M1, what is most liquid. ये सब concept जो हैं, these all have been taken directly from NCERT. In addition to that, you can refer to any standard economic text. कोई भी standard economic text ले लो, कोई भी कोचिंग का जो मटेरियल है उसको उठा लो. Cover the conceptual part, पूरा conceptual part try to understand. पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट को अच्छे से समझना है एंड देन हैव अ कमांड ओवर इट, सो दैट इवन व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, इफ दैट कॉन्सेप्चुअल पार्ट अपीयर्स अगेन, उधर कॉन्सेप्चुअल पार्ट दिख गया, सो यू कैन हैव द डेटा. अभी न्यूज़पेपर से फिर रिसेंट डेटा को उठाना है इन ऑर्डर टू बैक दैट कॉन्सेप्चुअल पार्ट. तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रेफर एनी ऑफ द सोर्सेज, एनी ऑफ द कोचिंग सोर्सेज, जिसका भी मटेरियल आपको अच्छा लगता है. आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम. आप किसी भी
कोचिंग का जिनका मटेरियल आपको अच्छा लगता है, ल्यूसिड है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इजीली डाइजेस्टेबल है, गो अहेड विथ इट, दैट्स द वन थिंग। देन कमिंग टू, इसमें इकोनॉमी में न्यूज़पेपर एनालिसिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। लाइक 4 days बैक, अभी 4 दिन ही पहले, इन हिंदू न्यूज़पेपर there was a concern regarding inflation. Retail inflation has again is picking up. So concerns regarding inflation. अब समझना है कि वो जो इन्फ्लेशन था was it due to supply side or was it was due to demand based. So क्या इन्फ्लेशन वो सप्लाई बेस्ड था या डिमांड बेस्ड था? सप्लाई शॉक्स की वजह से हुए, और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इन्फ्लेशन इटसेल्फ हैपन, व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन, और भी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज हैं, लाइक व्हाट इज द हाइपर इन्फ्लेशन, व्हाट इज डिफ्लेशन, व्हाट इज डिसफ्लेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेल इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन, व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन, व्हाट इज सुपर कोर इन्फ्लेशन। जब मेटेलिक्स जैसे गोल्ड है उनका प्राइस हटा दोगे कोर से, देन यू गेट सुपर कोर इन्फ्लेशन। देन विच आर द एजेंसीज इन्वॉल्व इन मेजरिंग इट। सो ऑटोमेटिकली ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं दे बिकम इम्पॉर्टेंट। सब ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करने हैं। कमिंग अभी सिमिलरली, मान लो कि इफ यू हैव रेड अबाउट डेफिसिट, आपने डेफिसिट के बारे में अच्छे से पढ़ा, सो यू मस्ट ट्राई टू नो अबाउट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, ऑल 4 डेफिसिट्स नीड टू बी नोन। कुछ ही दिन पहले, रिसेंटली, मीन्स ड्यूरिंग कोरोना लास्ट ईयर, देयर वॉज ए न्यूज रिगार्डिंग मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। तो अब मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट क्या होता है, हाउ इट इज हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी, what are the implications of it, what are the positive implication, what are the negative implication, टोटलिटी में आपको जान लेना है। कोई भी कॉन्सेप्ट नया आया, लाइक देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल, IRGD। सो व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, क्या है इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल? यू नीड टू नो एवरीथिंग। कुछ भी नया कॉन्सेप्ट दिखे इकोनॉमिक्स में, प्लीज गो थ्रू इट, ट्राई टू फाइंड आउट डीपली अबाउट इट। जितना अंदर घुसेंगे, बिलीव मी, यू आर गोइंग टू रॉक इन द प्रीलिम्स पेपर। बिकॉज मेनी अ टाइम्स जो यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर, इफ यू वुड नाउ सी स्पेशली इन 2023, दे आर नॉट जस्ट आस्किंग यू टू हैव अ कर्सरी ग्लैंस ओवर द न्यूज पेपर। नहीं, सिर्फ कर्सरी ग्लैंस से यू कैन नेवर क्रॉस प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए यू नीड टू हैव डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। सो एकदम ध्यान में इसको रखना है कि कर्सरी ग्लांस नहीं, कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाना है। इन क्रक्स, एक चीज सिंपल से क्रक्स में बता देता हूं कि वंस यू गेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन इकोनॉमिक्स, शिफ्ट योर गियर टुवर्ड्स न्यूज़पेपर प्लस करंट इवेंट। एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई तो देन शिफ्ट योर गियर टुवर्ड्स करंट अफेयर्स। करंट अफेयर इकोनॉमिक्स में दे प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पढ़ रहे हो, उसका एनालिसिस कर रहे हो, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट्स। जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उसको समझना है, वो दैट बिकम इम्पॉर्टेंट। कमिंग टू फॉर हिस्ट्री, अभी यूपीएससी का अगर आप क्वेश्चन देख रहे होगे तो यू मस्ट बी एनालाइजिंग कि पता नहीं क्वेश्चन बनाते कहाँ से हैं, आखिर आता कहाँ से है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो मीन्स when it comes to history, it is even more difficult to predict which questions would come. Not in mains, I'm talking about prelims. Mains में still to certain extent predicting question is easier than in prelims. तो prelims में many a times they are asking questions which have not been covered by any of the standard book. But how standard book can help you? स्टैंडर्ड बुक जो बुक्स हैं वो आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा देंगे, एंड उस फ्रेमवर्क से इट कैन अलाउ यू टू अंडरस्टैंड कि उससे किस मतलब उससे कैसे आंसर्स में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हाउ यू कैन एलिमिनेट इट। सो एलिमिनेशन वुड बिकम एन ईजियर टास्क। ठीक है, अब जैसे मान लो कि पाल प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा एक एग्जाम्पल है, वो तीनों का हमको टाइम पीरियड पता है, and say if they are asking कि which of these empire was before 5th century AD, और उसमें पालाज का नाम है, प्रतिहाराज का नाम है, राष्ट्रकूटाज का नाम है, so automatically you can eliminate it.
सो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे आपको वो हेल्प करेगा। कमिंग टू व्हाट आई रेफर्ड, मैंने क्या क्या रेफर्ड किया। तमिलनाडु बुक मैंने बहुत अच्छे से किया था हिस्ट्री के लिए। आई डिड तमिलनाडु बुक एनालिसिस इन अ गुड मैनर, इफेक्टिव मैनर। वहीं से मैंने अपने नोट्स भी बनाए एंड दैट वाज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। बट few of the important chapter which Tamil Nadu book has mentioned has missed, like R.S. Sharma का मैंने ancient history किया, like selected chapter which I could not find satisfactorily in Tamil Nadu book. Then medieval history मैंने सतीश चंद्रा से किया, again for the same reason. Few of the chapters of Satish Chandra were not covered satisfactorily by Tamil Nadu, like Age of Three Empire have not been at all covered by the Tamil Nadu book. तो वो वाला chapter जो मैं था वो मैंने सतीश चंद्रा के बुक से कर लिया। When it comes to modern history, I focused only on a spectrum. A spectrum was the best source for modern history. मैंने सब कुछ बार बार history again and again I revised only from modern history. Art and culture, नितिन सिंघानिया का मैंने बुक लिया, उसमें से भी सिलेक्टेड चैप्टर्स किया था, लाइक आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला किया था, वेदास वाला चैप्टर किया था, देन यू नो फ्यू अदर चैप्टर्स और ऑल्सो डिड, बट आई डिड नॉट गो बियॉन्ड 6 चैप्टर्स। 6 चैप्टर्स मैंने मैक्सिमम टोटल किए थे फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर। कमिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगेन लेट मी टेल यू, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों में न्यूज़पेपर एनालिसिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू साइंस, बेसिक्स, आगे तो सारे बेसिक्स को कवर कर लेने हैं, लाइक डिजीजेस, जो इंपॉर्टेंट डिजीजेस आर इन न्यूज़ उसके बारे में जान लेना है, शायद डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, सब कुछ जान लेना है। वाइटामिन्स, सारे वाइटामिन्स के बारे में जान लेना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या डिफरेंस है, सब कुछ समझ लेना है। व्हाट इज़ यू नो थ्रोम्बोसिस, ये सब जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो सारा अच्छे से समझ लेना है। व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग मेजर डिजीजेस, वो समझ लेना है। मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन से डिजीज कवर्ड है, वाई गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कवर इट, वो समझ लेना है। उसके काउजेज कौन कौन से हैं, वेक्टर बॉर्न है कि वायरल है, एवरीथिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड। देन करंट अफेयर, अभी जैसे चंद्रयान 3 इज इन न्यूज़, yesterday also there was one news regarding its deboosting. It may land on moon on 23rd of this month, मतलब आज today is 22nd, so कल लैंड करने वाला है। so it may land tomorrow on moon। तो अभी हमको क्या क्या समझना है, चंद्रयान के बारे में तो समझ ही लेना है, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू नो अबाउट ऑल द डिफरेंट ऑर्बिट्स। लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है, जीटीओ क्या है, जीईओ क्या है, व्हाट इज स्लिंग शॉट, वो क्या है। देन लॉन्च व्हीकल, ऑल यू नीड टू नो अबाउट कॉम्परेटिव फीचर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीएसएलवी, जीएसएलवी, LVM-3, what are the different stages of these launch vehicle। तो ये सब को टोटलिटी में समझना है। कमिंग टू बायोटेक्नोलॉजी, अभी इंडिया जो है इट इज़ अ टॉप नॉच परफॉर्मर व्हेन इट कम्स टू बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, बेसिक्स में आ जाएगा ये सब कुछ, DNA, RNA, हाउ दे आर डिफरेंट, क्रोमोसोमल एब्रेशंस, सोमैटिक सेल्स ट्रांसफर, एम्ब्रायोनिक ट्रांसफर, एप्लीकेशन पार्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक इन राइस, गोल्डन राइस, लाइक इन काउ, few genes are added so that they can increase the milk yield. Same like in sheep, few genes are added so that wool yield can be increased. तो ये सब टोटलिटी में कर लेना है और फोकस जो होगा वो करंट अफेयर पे होगा। करंट अफेयर में देखना है कि क्या क्या न्यूज़ में है। मोस्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स। टुवर्ड्स द एंड, इस वीडियो के अंत में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ और हमेशा इसको ध्यान से रखना है, बेसिक्स को अच्छे से कवर करना है। बेसिक्स आर लाइक लीकेज, अगर बेसिक छूट गया दोज आर लीकेज, और कहाँ से पानी निकलेगा यू वुड नॉट रियलाइज। सो अगर बेसिक छूटा तो फाउंडेशन वीक रहेगा, और फाउंडेशन वीक रहेगा सो यू कैन नॉट मेक बिल्डिंग। सो ये ध्यान रखना है। वन मोर थिंग, आराम से मेहनत कीजिए। मेहनत, ऐसा कहा जाता है कि मेहनत इतनी शालीनता से कीजिए कि सफलता आपका शोर मचा दे। तो फोकस ऑन शालीनता, आराम से मेहनत करना है कि
once you crack this UPSC, automatically the whole world will come to know what great achievement you have gotten. Take care of your health. See you in next video, lecture 9, in which we will be discussing about how to approach prelims. Please do like, subscribe and share this video if you don't want to miss the next video. Thank you. Take care.